बताइए कि ये एज एन ऑफिस वेयर हियर इन उत्सव आपने महसूस किया होगा कि कुछ लोग उम्मीद तो बहुत रखते हैं लेकिन कंट्रीब्यूट बिल्कुल नहीं करते किसी भी फॉर्म में, तो आप ऐसा इसका क्या कारण समझते हैं? I think basically it's a question of that the human beings are lazy by nature and they are greedy also by nature, a human being, not a particular person. And that's the reason that they want everything ready-made, but at the same time they don't want to accept themselves. That's my opinion. That's the root cause in my opinion. आप डॉक्टर साहब क्या महसूस करती हैं? एट दिस पर्टिकुलर एज जहाँ पर के लोगों को ये फीलिंग है कि अब हमने बहुत कर लिया, इससे ज़्यादा हम कुछ करना नहीं चाहते। और ये जब चुपचाप बैठे रहते हैं और कुछ उनको करना भी नहीं है तो दे ट्राई टू फाइंड अ रीज़न, कहीं ना कहीं से कोई रीज़न ढूंढेंगे। जब ग्रुप्स में बैठेंगे एक दूसरे को प्रोवोक करेंगे, ये नहीं है वो नहीं है, और वहाँ पर ये ट्रबल क्रिएट होती है। प्रोवोकेशन भी है और उनको अपनी ख्यालात नहीं है, प्रोवोकेशन पे ये करते तो हैं। इस उम्र में आपको ऐसा नहीं लगता कि अगर लोग मेडिटेट करें, अपने घर में चुपचाप बैठे एज फार एज पॉसिबल, और जो वर्ल्डली इच्छाएं हैं ऑफ इफ्स एंड बट्स, डूज एंड डोंट्स, कि ये होना चाहिए वो होना चाहिए, इस पर अगर हम कंट्रोल करें, जो हमने अपने पुराने जब जवानी में हमेशा सोचते रहे, करते रहे, इन्हीं बातों पर लड़ते मरते रहे, तो क्या हम इस उम्र में आकर इस कॉम्प्लेक्स में हम इन पर काबू नहीं पा सकते एज एन इंडिविजुअल? ये इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। ये एक ख्यालात है स्पिरिचुअल की तरफ, और एक ही है कि मैं कुछ बिजनेस में घुसूं। तो मैं ये जानना चाहती हूँ, क्या हम सब लोगों, क्या इस उम्र में लोग स्पिरिचुअलिटी की तरफ नहीं बढ़ना चाहते इस उम्र में भी? जैसा मैंने महसूस किया है कि सुपरफिशियली तो बहुत कुछ करना चाहते हैं, बट उनका मन इन बातों में नहीं है, क्योंकि दे आर गिवन एन अपॉर्चुनिटी कि आ जा करके आप एक स्पिरिचुअल मीटिंग में बैठो, बाय द डजन्स दे विल कम एंड सिट देयर, बट बेसिकली जो मन है वो नहीं है। तो मेरी ये बहुत ज्यादा इच्छा है जानने की कि इस उम्र में भी क्यों हम इतनी बुरी तरह से इन्हीं इच्छाओं में लुप्त हैं और लिप्त हैं जिनमें हम अपने एक्टिव लाइफ में भी थे। क्या 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 कारण हो सकता है? I think the basic reason according to me is that the ignorance, and again that by nature a man wants to be happy all the time. I have not seen anybody saying that I want to be sad. Now it's a question of how you want to get happiness. To me the happiness is something which is inside you. But a lot of people think the happiness is outside. Say for example, somebody will say, if I have a Mercedes car, I'll be happy. Now he gets a Mercedes car, then after some time he says, you know, it's not good. He wants to have a car like that. So that is like, until the people get to what is the real happiness, this will continue. That's what I want to know. Now, real happiness till we are young, youthful, our desires don't let us go up to that real happiness. But when we have already lived life of all fulfillment with all resources, professional satisfaction, now when we have become old, and even here, as I hear from other people, the people are very, very political minded even now, and people try to pull each other's leg if you sit together. There is still no desire to think away from this world, when we are all going to shortly leave this world. Now, what you think in one line? Why at all now? Why we are again associating and socializing and sitting and in groups and again and
बैक बाइटिंग एंड थ्रोइंग ब्रिक बैट्स हियर एंड देयर। आज क्यों मैं अपने घर में फ्लैट में चुपचाप नहीं बैठ सकती, आप नहीं बैठ सकते और ईश्वर का नाम ही नहीं, ईश्वर का नाम नहीं ले सकते, चाहे ईश्वर को आप माने ना माने, किसी भी रूप में माने, मतलब शांति से नहीं बैठ सकते। कारण The reason is not the age, it's the ignorance. We were ignorant at that time, so we thought, if I get a good job, I'll be happy. I got a good job, I was not happy, so I said, let me get a good wife and I'll be happy. With that I was not happy, so I said, let me have kids, they'll make me happy. I was not happy. So like that I kept on, I have come to an age where I have retired. But I still did not get the knowledge that happiness is inside me. I have to look inside. So I'm searching the happiness everywhere, and same thing is being done even after retirement at any age. So it's not the age, it's the knowledge. अगर मान लीजिए कि ये इग्नोरेंस या नॉलेज ज़्यादातर को है और अगर मेरे में नहीं है, सपोज कि मैंने आई कुड ओवरकम दिस, आई कुड रियली रीच एट दोज पॉइंट्स जहाँ से उतर के मैं और लोगों से कह सकती हूँ भाई हटो यहाँ से, अभी भी क्यों लगे हो, क्योंकि आई हैव गेन्ड। ठीक है ना, मैंने ऐसे लिखा था दो लाइनें आपके एसोसिएशन को लिखी थी लेटर में कि भाई ये स्टडी है, तो उसमें मैंने कहा था कि क्या हम एक एग्जाम्पल क्रिएट नहीं कर सकते एज एन एसोसिएशन कि हम सब्सक्रिप्शन ना लें, जस्ट अ थियरी कि सब्सक्रिप्शन ना लें और मंदिरों को हम मेडिटेशन सेंटर बनाएं और वहां पर ना तो पुजारी हो और ना ही कोई प्रसाद का वितरण हो और ना ही कोई दान हो, सिर्फ जैसे भाई टेम्पल बना हुआ है ना, भाई टेम्पल आपने देखा है कि अगर हम छोटे, पहली बात तो राजस्थान में ये इन्होंने नया कल्चर निकाला है कि रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में मंदिर बनाए हैं, एंड दिस इज ये कहीं और कहीं नहीं है अनफॉर्चुनेटली, यहाँ जो है अब यहाँ जो बनाए हैं तो इसका रीजन कॉमर्शियल ही हुआ सीधा। तो मैंने यही 2-3 पॉइंट्स लिखे थे और तीसरा मैंने ये कहा था कि हम इलेक्शंस ना रखें, रोटेशन कर दें। जो भी लोग आते हैं यहाँ पर एसोसिएशन में या काम वॉलंटियर्स जो भी आते हैं, तो इलेक्शन मीन्स करप्शन डेफिनेटली कि भी तू मेरा तो मैं तेरी, सर्टेनली। और अगर हम रोटेशन से आते हैं तो भी ठीक है कि हम आई विल हैव an obligation to prove myself if I come as a rotation. So now what we have done Yes. is here that we have made a compromise out of that. Now most of the time the people are volunteering themselves to do the work and they accept all that. So that is a sort of election. And as you said, rotation basis. So it's 2 years. If I am a secretary, I'll be here only for 2 years. After that, I'll not be a secretary or executive. Then I can continue to work voluntarily. Nobody can stop me from that. But once you complete a term, then you are no more. Exactly. So that's a rotation here. नहीं, आई आस्क्ड अपनी गाड़ी ठीक करा रही थी मैं कहीं पर सेक्टर 14 गुड़गांव में, तो आई जस्ट वेंट बिहाइंड दैट गैरेज, वहाँ फैमिली वॉज लिविंग। आप जब इंटरव्यू खोलो तो उसमें इंटरव्यू है उसका पूरा, वो जो दैट मैन, आप देखो कि ये दीज पीपल आर सो अवेयर। मैंने इलेक्शंस के बारे में पूछा था, फिर वहाँ काट दिया था वो इलेक्शन और वो समझा नहीं मेरी बात को, ही वॉज नॉट दैट लिटरेट। तो जो मैं सोच रही थी कि अगर हम सिर्फ यहीं नहीं, नेशनल लेवल पर भी मैंने आपसे सवाल किया था, जब मैं आपसे कर रही थी तब भी मैंने आपसे सवाल किया था कि हर लेवल पर अगर हम कोई ऐसा यार्डस्टिक निकालें कि रोटेशन हो जाए पढ़े लिखे लोगों में, नॉलेजेबल लोगों में और ज्ञानी लोगों में, सिर्फ नॉलेजेबल नहीं, जो ज्ञानी भी हों, यू नो, पीपल विद विजडम। वी नीड पीपल विद विजडम, वी डोंट नीड नॉलेजेबल पीपल टू रूल, क्योंकि जो नॉलेजेबल पीपल हु आर रूलिंग दे आर करप्ट पीपल, दे आर क्रिएटिंग करप्शन इन एवरी स्टेप। We need the wise people to come forward everywhere. और ये वाइज लोग कैसे आएंगे? अब ये वाइज लोग गुरुज नहीं है जिनको हम मानते हैं कि जिन्होंने जो है ना वेद पढ़े हैं, कि पुराण पढ़े हैं, कि गीता पढ़ी है, कि रामायण पढ़ी है, बयान नहीं कर सकते। तो the question is
तो Who will decide who is wise and who is not wise? हाँ, ये भी है. And the moment you come to that question, नहीं, who बट will decide? डेफिनेटली आप आज अगर मेरे से बात कर रहे हैं तो आप कुछ तो सोचेंगे कि हाँ भाई हमने किसी एक ऐसे व्यक्ति से बात करी जो अलग से अलग है. इसी तरह से मैं आपसे बात करके जाऊंगी ना और आपसे बात करके जाऊंगी तो आपसे मैं बात करके गई थी तो आई फाउंड यू डिफरेंट. ठीक है ना. तो आई सर्टेनली रेट यू इन दैट कैटेगरी ऑफ वाइज पीपल, लिटिल वाइजर देन द कमर्शियल पीपल. तो आई स्टिल फील दैट यू आर ऑल्सो कमर्शियल. You are not that, you are not a person which is totally above it. You are very practical. यहाँ लेडी आएगी